سو میں نقصانات کے والے سے بات کروں ماریا، تو کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بہن بھائی میں گھر میں سب سے بڑی ہیں؟ ہاں تو بالکل بڑا جو ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے، اور میاں کی سائڈ سے بھی ہاں بالکل، تو بڑا ہمیشہ بڑا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا ہی سکھایا جاتا ہے، وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو چھوٹا ہے یا وہ چھوٹی. تو میرے حساب سے ہمارے پیرنٹس کو، یا اگر میں آج کل کے جو پیرنٹس کی بات کروں، جو ہمارے بچے نا بڑا ہے چھوٹا یہ فرق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بڑا بچہ بہت مینٹلی نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے سم ٹائمز، جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کو وہاں پہ وہ اسپیس ملنا چاہیے جو اس سے 2 سال چھوٹے بچے کو مل رہا ہے. یو نو اگر کوئی بچہ 6 سال کا اور 4 سال کا، دونوں کی کھیلنے کی عمر ہے، تو دونوں کو ہی خیال کی ضرورت ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ کہیں ہمارے جو بڑے ہیں نا اس چیز کے اندر اس چیز کو اس طریقے سے لے کے چلتے. آئی ڈونٹ نو، بٹ میں چونکہ بڑی تھی تو میں نے تو ہمیشہ سے یہی سنا کہ بڑی ہو بڑی ہو بڑی ہو، اور وہ ایک ٹائم پہ مجھے نفرت ہو گئی اس لفظ سے، مجھے بڑا نہیں بننا، میں سب سے چھوٹی ہوں تو مجھے چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کرو. مطلب آئی ایم ٹائرڈ آف دس، یو نو. تو میرے 2 بیٹے ماشاء اللہ، تو اور دونوں میں 5 سال کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 5 سال کا گیپ ایک بڑا گیپ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے بڑے والے کو کبھی بھی نا پریشرائز نہیں کرتی اس چیز پہ کہ تم بڑے ہو سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہم، یو ہیو سکھانا ہے، لیکن پریشرائز نہیں کرنا کہ انڈر اسٹریس وہ انسان آ جائے وہ بچہ، بیکاز یہ چیزیں رہتی ہیں دماغ میں رہتی 9 10 11 15 25 30 35 آپ کی ایج کے ساتھ وہ چیزیں آپ نہیں بھولتے ہیں، یو نو. تو بہت سارے ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ مینٹل ایشوز سے نا 2 4 ہو جاتے ہیں. آئی تھنک یہ آپ ایگری کریں گی. ایبسولوٹلی یس. اور جیسا ہم لوگ بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے نا وہ بچپن میں ہی بڑی ہو جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اچھا یہ ذرا اس کو سنبھال لو، اس کو سب چھوٹی سی آنٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی سی آنٹی سمجھنے لگتے ہیں. وہ چھوٹے والے کو کھلائے گی، ٹائم اگر پیرنٹس بزی ہیں تو وہ ان کو دیکھے گی، مہمان آئے ہوئے تو وہ چھوٹوں والوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھے گی. نا اس میں یہ بھی ہے کہ جو بڑی بیٹی ہوتی ہے یا بڑے بیٹے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم چھوٹی عمر میں ہی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں، اور اس بچے کو نا وہ جو گروتھ کا ایک پورا پروسیس ہے، جو اس کا ایک لیوریج اس کو ملنی چاہیے، جو فریڈم اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا پہلی اولاد میں اٹس لائک اے پروجیکٹ، تو اتنا اٹینشن اس کو مل رہا ہوتا ہے، اسٹرکٹ بھی سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کو چیزیں اجازت بھی نہیں مل رہی ہے. اور جب تک وہ 4 5 تک پیرنٹس آتے ہیں نا تو پیرنٹس خود ہی اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ چل یار ٹھیک ہے تو خود ہی دیکھ لیں، ہاں گر گیا تو خود ہی اٹھ جائے گا، خود ہی اٹھ جائے گا. کیونکہ پہلے والا جیسے آپ نے پروجیکٹ کی بات کی، میں بھی کہتی ہوں کہ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہے پڑھائی میں، کتنا اچھا، دیکھو میں نے اس کو ایسے ٹرین کیا ایسے ٹرین کیا. تو وہ آپ شاید ڈرے ہوئے پیرنٹس بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ کوئی چوٹ نہ لگے، جج نہ کرے اس پہ، یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے. اور ایک عجیب سی بات مجھے بھی لگتی ہے، پیرنٹس اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی نا بچے کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے والے کے لیے، ارے یہ تو بھولا ہے، ارے یہ تو بالکل لمیہ کی گائے ہیں، یہ جو چھوٹا والا ہے نا یہ بڑا چلاک ہے. تو یہ ہم لیبل بھی کرتے ہیں نا. اینڈ آئی کڈ یو ناٹ، بچہ جب یہ امپریشن ریسیو کر رہا ہوتا ہے اس کی سائیکی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑا پھر بھولا ہی ہوگا، ہاں چھوٹا تیز ہی ہوگا، چھوٹا تیز ہی ہوگا، چھوٹا اسٹریٹ اسمارٹ نکلے گا، اور بڑا جو ہے نا بالکل معصوم کمپرومائزنگ. آپ وہ والی بات لیں جو اسٹریٹجی اب سمجھ میں آتی ہے، جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے نا، آلویز اسپیک گڈ ورڈس، پازیٹیو، وہی چیز ہوتی ہے. جیسے ایون اگر نام بھی ہمارے گروپس ہوتے ہیں نا، اگر ہم کچھ پگلی گروپ لکھ دیں گے تو وہ بار بار پڑھ کے پگلی خود ہی پاگل ہو جائے گی. تو وہ آگے اس پہ ہے نا، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ جو ہمارے معنی ہوتے ہیں نا، دے لیو این امپریشن، کیونکہ جو بھی ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں یہ معنی ہی ہیں. جو میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں، جو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں، آئی ول بیکم دیٹ. دیٹس دا پاور آف مینیفیسٹیشن. ہاں مجھے لگتا ہے کبھی کوئی زندگی میں آپ کو ویٹیج نہ دے رہا نا، آپ خود اپنے آپ کو ویٹیج دینا شروع کر دیں. اور وہ آپ، اور یہ نہیں دل میں بولیں، آپ کہیں تاکہ وہ آپ کی باڈی بھی سنے. یس کیونکہ سننے کا بڑا امپیکٹ ہے بھائی. بلکہ مدیہ دس از سو امپورٹنٹ. میں ان سے یہ کہی تھی مائنڈ سائنسز جب میں شو کرتی تھی تب یہ تھا، مگر آیا سمجھ میں، تھوڑا آیا نہیں آیا بھول گیا، اب میں اتنے سال پرانی بات. بٹ یہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں نا، اتنا پاورفل ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے اگر ہمیں یہ عادت. اب میں بھی ابھی بات کر رہی ہوں نا، بعد میں بھول جاؤں گی. جیسے کرن کبھی مجھے ٹوکے گی، میں کہوں فلاں میں تو میڈ کو ڈھونڈ پاگل ہو گئی، یہ کیا بولنے کی ضرورت ہے پاگل ہو گئی، ضروری تو میں بولنا ہے پاگل، نارمل. تو انشاءاللہ مل جائے گی. تو یو نو اٹس گڈ. غلطی ہونے پہ ہم کہہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ابے یار ناک میں دم کر کے رکھ دیا، بالکل یہ
बी काम, हमें बहुत पॉजिटिव अल्फाज की चुनाव लेनी पड़ती, जो कि आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, ये पानी की बोतल है, अगर मैं इसको गलत अल्फाज का इस्तेमाल करूंगी तो जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो शक्ल बदलने लग जाएगी, वो डेड चलने लग जाएंगे। ये तो हमारी बॉडी जो कि ऑलरेडी कल की जो बात की जो ऑलरेडी 70% इज वाटर, तो जब हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ना हम थेरेपिस्ट की बात की जाती है, क्योंकि वो बातें जो हम खुद को नहीं बता पा रहे होते वो हमने कह रहा होता है, तो उसके कहने में जो हमारी बॉडी सुन रही होती है, तो उसका एक अलग से एक इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होता है। अच्छा, और दूसरे आपने कहा कि एक तो नुकसान कि ये अब बच्चों का मुझे लगता है बहुत सी जगहों में बचपना भी छीन लिया जाता है। बाकी 3-4 साल का बच्चा हो रहे, 3 साल का बच्चा भी छोटा है और बेबी आ जाए, तो अगर वो छोटा बेबी इसको कोई टॉय भी छीनता है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप बड़े हो ना, आप बड़े हो, आप तो समझ सकते हो ना, वो तो बेचारा नहीं समझ, जबकि वो खुद भले 1 साल का फर्क हो, भले 2 साल का फर्क, आप बड़े हो। तो बड़ों को बेसिकली यहाँ पे समझना चाहिए, बड़ों को बड़ा बनना चाहिए। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों की भी शायद उस तरीके की समटाइम मे भी ट्रेनिंग ऐसी ना हो कि उनको इस चीज पे रियलाइज, देखिए बड़ा एज से नहीं है ना, बड़ा आपके उससे कि आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर लाइक, आपका बिहेवियर कैसा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह कैरी कर रहे हो, आप अपने से बड़े और अपने से छोटों के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बड़ों का वो कहते हैं ना कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के जहाँ पे उसका बचपना ले लेते हैं, वहीं पर जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि वो तो छोटा है तो हम उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किस्म की उसको बता देते हैं कि तू मुबर्रा है, तुझे किसी का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वाकई वो बच्चे दे डोंट केयर, वो चाहे 30 के हो जाए, 40 के हो जाए, उनको पता है कि मेरा क्या मसला है, इनका इशू ये हल करेंगे, ये बड़े हैं, चाहे वो कमाए ना कमाए, इनका इशू है ये कैसे चलाते हैं। इसमें उनमें गुस्सा भी तो पैदा हो जाता है ना कि जी वो बड़ा है, मैं सबसे छोटा हूँ, तो अथॉरिटी तो उसको दी जा रही है, पूरा विल की पूरी डिटेल उसके पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो फिर रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि वो समटाइम्स बचपन से सुनता जो आ रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो। अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है कि हम माशाल्लाह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारी फैमिलीज अभी न्यूक्लियर नहीं हुई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही चल रहा है। इफ आई टॉक अबाउट बोथ माय फैमिली, ससुराल भी मैका भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मुझे एक बात ये लगती है कि हम औलाद को मोहब्बत देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए पूरी उनकी नशोनुमा के लिए सारी अरेंजमेंट करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है पेरेंट्स को अपनी ट्रेनिंग चेंज करने की जरूरत है कि औलाद को फिर मोहब्बत नहीं चाहिए होती, सिर्फ उसे इख्तियार और इज्जत चाहिए होती है। वो कौन सा टाइम होता है? As soon as they are getting into college university, starting to earn, फिर उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जानी चाहिए। 14-15 साल के बाद से ठीक है, आप फिर उनको जैसे शामिल करना शुरू कर दिया डिसीजंस में। मैं तो ये देखती हूँ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि वो छोटी सी बच्ची थी इतनी बड़ी, आई वाज इन अ मॉल सुपर स्टोर, और वो प्लेट्स दिखा रही थी बच्ची को, और इतनी सी बच्ची थी वो, और उससे पूछें कि देखो बेटा ये वाली प्लेट अच्छी लग रही है, ये वाली ऐसी आपकी फ्रेंड के घर पे भी थी ना। एंड आई सेड यार कितनी अच्छी बात है ये। और आप अगर ऑब्जर्व करें ना मॉल्स में भी जब आप जाते हैं, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा, वो अपना जैकेट भी ट्राई कर रही है तो अपनी दादो साथ है तो वो उनको दिखा रही है, दादो इज दिस लुकिंग नाइस, इट्स लाइक बारबी पिंक। सो वो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, और ये इनफरादियत देना बहुत जरूरी है। वो जब उनको पहले अथॉरिटी देंगे, सिलेक्शन करने देंगे, उनको शामिल करेंगे अपने साथ, और होना भी ये चाहिए कि जैसे ये कह रही है 6-7 साल के बच्चे हो, आप उनको जब उनकी शॉपिंग करते हैं या उनके लिए कपड़े लेते हैं तो उनको साथ रखें, उनसे चॉइस कराएं कि तुम्हें कौन से पसंद है, तुम कौन सा पहनने चाहती हो, कि उनको फिर अपना कॉन्फिडेंस इसी तरह डेवलप कुछ चीजों में उनको आप अथॉरिटी दे दें कि ये कपड़े पहनने या ये कपड़े पहनने। हाँ, कहीं कहीं आप पूरा एक लेवल बना के स्ट्रक्चर बना के रखेंगे उनके लिए कि बेटा यही है बस। अच्छा, सो यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस। कहीं मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली के बड़े होते हैं ना, वो अपनी अथॉरिटी को बड़ा गलत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जैसे जब कोई शादी का भी मौका आता है खानदान में, जब कोई बड़ा इवेंट आता है, कोई ईद का डिनर आ गया, तो उसमें से कोई बड़ा या बड़ी फुप्पो, बड़े ताया, बड़े मामू जो है ना, वो कहते हैं क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो रुसना है और उनको चाहिए थी ज्यादा, खास तौर पे वो मौका होता है। और उनको ज्यादा, वो कहते हैं मुझे तो ज्यादा चाहिए, जो मुझे कार्ड देने जब आए थे तो मिठाई 1 किलो की क्यों थी, या जब फैमिली की तस्वीर हो रही थी मुझे बुलाया क्यों नहीं गया, मुझे सही से तरह के। तो एक ऐसे भी मैंने भी अभी रिसेंटली एक ऐसे, नॉट इन माय फैमिली, मैंने किसी की फैमिली में देखा, तो मैंने देखा कि वो क्योंकि उनके वो जो खानदान के बड़े हैं उनका मूड ऑफ हो गया, तो वो ये नहीं देख रहे कि वो किसी की बच्ची की शादी है, अपने चाहे भाई की बच्ची की शादी है, क्योंकि उनका मूड ऑफ हो गया तो वो पूरा खानदान सफर करेगा। अब वो लड़के वालों से कैसा बर्ताव करें ये उनका इशू नहीं है, वो तो बड़े हैं। आई थिंक बहुत से खानदानों में होता है, स्पेशली लाइक यू नो पंजाब साइड इधर, कि जो बिल्कुल अथॉरिटी उनसे ही पूछ के करेंगे, चाहे बड़े हो, बाबा जी बोले, कुछ भी बोले, उन्हीं के फैसले होंगे, वो नाराज है तो पूरा खानदान। तो ये आई थिंक ये प्रॉपर अथॉरिटी जो है, शुक्र
हम लोगों ने अभी तक नहीं फेस की, बट फैमिलीज हैं ऐसी। अच्छा मेरे साथ भी कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, शकीब साहब है मेरे साथ। जी शकीब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपकी। जी जी, और मैं सुनता हूँ डेली, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर बख्शे। इलाही आमीन। तो मैं आज की अगर बात कर रहा हूँ काज़मी जंग से। जी जी, मेरी बहन, दरअसल बात यह है कि पहली बात तो यह है कि हमने जैसे हस्ती का कलमा पढ़ा है ना, फिर हमने पासदारी नहीं की। नंबर 2 ये है कि हुक्म ये है शरन कि हम वालिदैन का हर सूरत में एहतराम करें। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ज्वाइंट सिस्टम होता है फैमिली में, जाहिर बात है, तो फिर ये इश्यूज होते हैं, चलते हैं। तो अगर वालिदैन ही अहमियत नहीं देते बड़े बेटे को, तो क्या करना चाहिए? वालिदैन ही नहीं वही देते। शकीब भाई, आप मुझे बताएं, आप अपनी फैमिली में बड़े हैं या आप छोटे हैं? आपका कौन सा नंबर है? मैं छोटा हूँ। आप छोटे हैं। हाँ, और आपकी फैमिली में अगर मैं पूछूं आपसे, तो घर में किसकी चलती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद फौत हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और वालदा ताहयात हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, लंबी इलाही जिंदगी। आमीन। तो बहुत ही वो हुस्न वाली हैं, लेकिन हमें तो यही हुक्म है कि सब्र करना है और उनकी इज्जत करनी है हर हाल में। हाँ, शफकत से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि उनकी दुआएं जो हैं वो ही हमें मंजिल तक लेके जा सकती हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ हम सैयद फैमिली से हैं, हमारी पीरी मुरीदी भी है, तो हर मुरीद को भी यही कहता हूँ कि पहला जो किबला है, पीर है, मुर्शिद है, वो वालिदैन है दुनिया का। तो बिल्कुल जी, बेशक। हाँ। अगर वो राजी नहीं है तो जाहिर बात अल्लाह कैसे राजी होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमने तो सब्र करना है। मैं तो अभी बाहर रह रहा हूँ, इधर अच्छा टेंट में हूँ, तो वो फोन पे ज्यादा बात होती है, ये जब आए तो। बाकी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप, इस पे बोले कि बड़ों को भी चाहिए कि वो बड़ा बन के रहें, हाँ, दुआओं के साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात अल्लाह की। आपको सलामत रखे, अल्लाह बड़ों को सलामत रखे, इलाही आमीन। जिनके जिंदा है अल्लाह उनको जिंदगी दे, और वो जरा सब्र से काम ले, इलाही तो आमीन। उसमें बच्चे भी परेशानी से बचेंगे, और बड़े भी, और एक फैमिली भी बच जाएगी, ये खानदान बच जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। खानदान को बचाने के लिए ना बड़ों का बड़ापन दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं बड़े जहाँ पे छोटे निकल आए ना, छोटे दिल के निकल आए, वो खानदान और उस खानदान में रहने वाले लोग अजियत से दूचार हो जाते हैं, अजियत से दूचार हो जाते हैं। आपने अपने सामने का क्या कभी कोई ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें किसी बड़े की, क्योंकि कभी कभी हमारे बड़ा जब किसी अना में भी आ जाए ना, तो वो बड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे आपको पता नहीं, खानदान में शादी होनी है, सही, और आप देख रहे कि नहीं, जोड़ी नहीं फबती, नहीं अच्छी लग रही, नहीं मैंने, क्योंकि मेरा डिसीजन है, तो खानदान में शादी हाँ, होनी ये है। अना तो होती है जो खानदान के रिश्ते तबाह कर देती है, रिश्ते तोड़ देती है। बिल्कुल हमारी फैमिली में हुआ है, मेरी मदर की साइड पे हुआ। तो मेरी जो खाला थी उनमें भी बड़ी अना और अकड़ थी ना, वो बस कहती थी कि जो मैं कहूँ वो माना जाए। तो उनकी बेटी किसी को लाइक करती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो भाई का बेटा है, तुम्हारी शादी वहीं होगी। अब बड़े इस पे झगड़े हुए, लेकिन वो जो एक होता है उनका एक डोमिनेट थी, तो जबरदस्ती शादी कराई गई। अब लड़की की भी वहाँ अंडरस्टैंडिंग न बने, और जहाँ शादी हुई उस लड़के को भी पहले पता था कि इसकी कहीं और अंडरस्टैंडिंग है। तो ये हुआ कि पूरे खानदान तबाह हो गए, वो जो बहन भाई का रिश्ता था वो भी तबाह हो गया, झगड़े शुरू हो गए, खानदानी झगड़े शुरू हुए, और वही हुआ कि लड़की को तलाक हुई, वापस घर आ गई। तो ये जो बड़े अपनी बड़ाई को उस वक्त अपनी मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें, न कि अकड़ में। जो ईगो से फैसला किया जाएगा वो हमेशा तबाही लाएगा। आप अपनी बच्चों की खुशियां देखें, अपने साथ रहने वालों की खुशियां देखें, और अपनी इमोशंस को प्यार में तब्दील करें। ये नहीं कि आप अपने को बड़ा, अल्लाह ताला ने अगर आपको ये रुतबा दिया है कि आपको घर वाले बड़ा समझ रहे हैं, आपको वो अथॉरिटी है, तो उसमें आप फैसले समझदारी से करें। जैसे वो बात अभी, जैसे शकीब भाई की भी कॉल आई थी, और वो जैसे वो मतलब उनके मैसेज उनके समझ गए कि वाकई बड़ों को भी बड़ा दिल करने की बड़े जरूरी है। क्या ये ऐसा कोई उनका भी कोई ऐसा पास्ट होता है जिसकी वजह से वो इतने बिटर हो जाते हैं? क्या उनके बच्चे अगर थोड़े से परेशान उनको लेके? लेकिन मैं सवाल को कंटिन्यू करूँगी, कॉलर साथ आ गए। नबीला मेरे साथ इस्लामाबाद, ओह चलिए कॉल कट गई है। सो क्या बड़ों का भी ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से उनमें इतनी ईगो आ जाती है? बचपन में कभी उनको नहीं सुना गया होता तो उनको होता है कि नहीं, मैं तो अपनी चलाऊंगा, चाहे
जो भी रिपरकशंस हों? एब्सोल्युटली यस। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मुझे मेरा नहीं सुना गया तो मैं अपनी चलाऊंगा। इट्स अबाउट उन्होंने एक तरीका होते हुए देखा है। हम कंपनीज में भी जब काम करते हैं, हम किसी नई कंपनी में जाते हैं, हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई पुराना बंदा हमें कह देता है ना यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही कर लो, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम यही है। खानदानों में भी यही चल रहा है कि जी हमने तो यही इसी तरीके से देखा था। माय नानी हैज सेवरल टाइम्स टोल्ड मी कि हम तो ऐसे नहीं करते थे, तुम लोग जितने सवाल पूछते हो। एंड आई एम लाइक भाई आप बताएं ना, ये आप जो मुझे करने के लिए कह रही हैं आपको किसने बताया? एक्चुअली सिलसिला ये है कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम चला आ रहा है ना, जो हमने समझा हुआ है, किसने बताया ये नहीं पता, प्रूफ क्या है इसका ये नहीं पता, लेकिन हमने समझ लिया है। जैसे हमारे साथ जो शकील साहब कॉलर थे, तो उन्होंने जो ये रिलीजियस वाली बात जो की, रिलीजन को के हवाले से अगर हम देखें, खानदानों में मैं देखती हूँ इतना बुग़्ज़ है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दावतों में मिलेंगे, हेलो हाय कर लेंगे, हंस खेल लेंगे, लेकिन जाके ग़ीबत करेंगे। आपके दिल में किसी को लेकर मैल है अगर, तो उसको साफ करना जरूरी है। इस्लामिकली कह रही हूँ मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें हम खुद भी अपने लिए समझते हैं ना, क्योंकि हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। बट ये चीजें जो है कि यार पेरेंट्स की हर बात माननी है क्या? तब क्या करना जब वो मुझे कहेंगे किसी के साथ बिला वजह आप जुल्म करें, तब तो मैंने नेगोशिएट करना है ना। तो उस मामले में मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, ये भी हमें बड़ा जरूरी है सीखना। और बड़ों को सीखना कि जी मुझसे सिर्फ अपनी अना की वजह से कि मैंने जबान दे दी है, मुझसे ज्यादती ना हो जाए किसी के साथ। ये चीज बहुत सारा पावर जो है ना वो जुल्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, कि कहीं के जो खवातीन भी अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए घरों में, जो घर की बड़ी खवातीन चाहे वो सास भी हो, वो सिर्फ अपनी बहुओं को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी हूँ, तो अपने बेटे से कहती जा इसको जरा सेट करके आ। तो वो सेट करके आगे चाहे उस पे हाथ उठाना, सिर्फ वो एक्सरसाइज करना कि देखो मैं मेरे पास अल्लाह मुझे माफ करे, लोग रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं। और उस वक्त मैं ये समझती हूँ कि भाई यहाँ आपका दीन, आपका अल्लाह का ताल्लुक नहीं चल रहा, आपकी अपनी अना चल रही है। आपने दीन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अना कितनी बड़ी दुश्मन होती है बड़ेपन की। अना तो देखें किसी भी रिलेशन के अंदर आप ले आए ना, दुश्मन नहीं है अना। तो अना की तो कोई पॉजिटिव साइड है ही नहीं। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि अपने रिलेशंस को हमें बेहतर बनाने के लिए ना अपनी बात अगले को इस तरीके से डिलीवर करनी चाहिए, बीइंग अ बड़ा, कि उसको ये ऑर्डर ना लगे। इट्स वेरी ट्रिकी, यू नो, बीइंग अ बड़ा इज नॉट इजी जॉब, यू नो। सही, इट्स वेरी ट्रिकी, एग्जैक्टली, कि आपको आपका कहीं भी बात सुनी भी जाए, छोटा आपसे प्यार भी करे, ठीक है, और उसको ये भी लगे आपके ऊपर कोई हुक्म मुसल्लत हो रहा है, और वो अना के उसके अंदर भी ना है। और बड़ों को भी इस चीज़ का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं बड़ी हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं अगर कभी अपने छोटे बहन भाइयों को मशवरा देती हूँ, तो मैं उनके ऊपर नहीं तुमने यही करना है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो ये किया, देखो ये हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अना को तो बीच में नहीं लाना चाहिए। बड़ों को तो खास तौर पे, मैं फिर अगेन बड़ों पे बड़ा प्रेशर है। आई थिंक कम्युनिकेशन वाली बात है। देखो कम्युनिकेशन हर रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लाउड, चीखा पुकार में कम्युनिकेशन नहीं होती। अम्मा जी बड़े कम्युनिकेशन के रास्ते दरवाजे बंद कर देते हैं। मैं चाहूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।